Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for this examination. So as per all of your request, I am providing series related to the non-domain part of the syllabus, that is GK, General English, and apart from this, aptitude, right? Aptitude and reasoning. So I will be providing questions. Uh, I will be solving it for you, and then I will provide the important cheat sheet for you so that you can solve. So before starting the video, do subscribe if you find it useful and hit the like if you find it like that much pretty good. So without further delay, let's start the video. So the first question is related to speed, that is a train 150-meter long crosses a pole in 10 seconds. So what is its speed? So basically you have to calculate the speed, and the formula for speed is this one. You already know speed is equals to distance upon time, यानी कितना distance cover किया है कितने time में. So this will provide you the speed. So as you can see here, a train is 150-meter long which crosses a pole in 10 seconds. So उसकी speed कितनी होगी? So distance will be 150 because it is 150-meter long. So 150 upon time. ठीक है? So what will be the answer? The answer will be like this way. 150 upon 10, 15, which is meter per second. Now you have to calculate it into kilometer per hour. So to convert this meter per second into kilometer per hour, you only have to multiply by 18 into 18 by 5. You only have to multiply whatever be the value in meter per second with this one, 18 upon 5. So you will be like having the answer. So answer will be 54 kilometer per hour, right? So this is the way through which you can solve the question. All the question will be like based on whatever you have studied in general mathematics in your school, and also based on some of the concepts like if speed, displacement, velocity will be asked from your 11th and 12th, and also you study it in 9th standard, right? So it is nothing difficult, you can solve it. So moving on to the next question. I have not provided option for this because I wanted you to solve this and come to the point. So if 8 workers complete a work in 12 days, so this type of questions are very common in CSIR, first section, right? Aptitude section. So if 8 workers complete a work in 12, so try to write it down whatever you are studying. 8 workers are doing a work in 12 days, right? How many workers are needed to complete it in 6 days? So how many workers are needed to complete this in 6 days, right? So how you will solve this question? Try to solve by your own. So this type of question gonna be asked by your examiner, right? So see, if work is equals to workers into day, right? Work तभी होगा जब workers आएंगे and multiple days वो काम करेंगे. So if 8 into 12 यानी कि 96 total work unit है, 8 वर्कर्स हैं, कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, यानी 8 वर्कर्स मिलके काम कर रहे हैं तो 12 दिन में वो काम फिनिश हो रहा है, ठीक है? सो कितने वर्कर्स लगेंगे कि वो काम 6 दिन में ही खत्म हो जाए, 50% हाफ हो जाए, ठीक है? वर्कर्स पूछा है आपको, हाउ मेनी वर्कर्स इट विल नीड. सो 8 into 12 आपने निकाल लिया, 12 8 जा 96, 96 टोटल वर्क यूनिट है. सो रिक्वायर्ड वर्कर्स क्या हो जाएगा? 6 डेज के लिए आपको चाहिए, ठीक है? ये 12 डेज के लिए था, तो 96 upon 6 is equals to 16. So answer will be 16 workers, right? तो ये बहुत simple question था. Now next one, a number is increased by 20% and then decreased by 20%. So let the number be x. ठीक है? x होगा तो क्या हो जाएगा? x जो है वो 20% इंक्रीज हो गया. फिर क्या हो गया? x is decrease 20%. तो 2 इक्वेशंस आपके हो गए. Now what is the net change? So let the number be 100. ठीक है? इंक्रीज हो गया 120, डिक्रीज हो गया कितना? फिर से 20%, तो
120 इंटू 0.8 इज इक्वल्स टू 96, यानी कि पहले नंबर 100 था, अब वो 96 हो गया, यानी कितना हुआ, 4% का डिक्रीज हुआ। सो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं, सो how you will solve this question, this is the way you have to attempt the question. And also if you are targeting to have some like बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, so for that also you need to attempt all these questions, right? So जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, आपको उसका चीट शीट बनाना है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं, ताकि आप क्या कर सको, आप उसको आगे के क्वेश्चन में भी वो चीट शीट को यूज करो। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, बिकॉज सिंपल सिंपल ही क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। ठीक है, सो सी जैसे मैं इसी क्वेश्चन का अगर चीट शीट दूं आपको, तो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है नंबर इंक्रीज बाई 20%, ठीक है, और फिर नंबर डिक्रीज हो गया 20% से, यानी आप कोई भी नंबर ले, पहले आपने बढ़ाया फिर आपने घटा दिया। ठीक, तो अब हमने इनिशियल नंबर 100 लिया है, ठीक है, अब उसमें 100 में इंक्रीज बोला है, इंक्रीज बाई 20%, तो 20 नंबर इंक्रीज कर देंगे तो ये 120 हो, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या होता है, why we have, you must have a question that why we have multiplied 0.8, ठीक है, सो अगर एक नंबर, जैसे क्वेश्चन में ही तो दिया है ना, 20% से डिक्रीज होता है, ठीक है, सो वाई वी हैव मल्टीप्लाई बाई 0.8, बिकॉज 20% डिक्रीज मीन्स यू आर कीपिंग 80% ऑफ द वैल्यू। ठीक है, मतलब ये जो भी वैल्यू ये वाली है, इसमें से आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है 20%। ठीक है, तो 20% डिक्रीज करोगे, इसका मतलब 80% वैल्यू रख रहे हो। ठीक है, तो जो 80% है वो डेसिमल में कितना होगा, 80/100 कितना हो जाएगा, 0.8 होगा। तो ये 0.8 यहाँ से आया था। ठीक है, आई नो दैट यू मस्ट बी कंफ्यूज कि 0.8 कहाँ से आ गया ये, तो इसीलिए 120 इंटू 0.8 क्या हो जाएगा, 96, यानी कि नेट चेंज कितना हुआ है, 4% का डिक्रीमेंट हो गया है। ठीक, फिर से बता रही हूँ, कोई भी नंबर जब लोगे XYZ, ठीक है, तो वो उतना हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज कर देना, तो इंक्रीज में तो कुछ करना ही नहीं है, बस बढ़ा देना है। डिक्रीज के टाइम पे अगर आप 20% डिक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब ये है यू आर कीपिंग 80% ऑफ द वैल्यू, से 20% ही घटा रहे हो, 80% तो रख ही रहे हो, तो उसी को हमने बस डेसिमल में निकाला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है, मतलब द कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकालना है, तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, दिस वन, 1 प्लस R अपॉन 100 रेट, और ये टाइम माइनस P प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो जो भी ये चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से, मतलब फॉर्मूला जितना भी मैं यहाँ पे यूज करूंगी वो उसको लिख दो। ठीक है, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो आपको आएगा। सो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज प्रिंसिपल, आर जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और टी होता है टाइम। ठीक, तो अब जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला आपके पास है, तो अब निकालो इसमें से, 1000 बोला है आपको। ठीक है, सो उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो नियरली ये 2110 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो अच्छा होगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें। नाउ नेक्स्ट वन, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 20। ठीक है, मतलब एवरेज ऑफ 5 नंबर, लेट सपोज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, इतने को आप प्लस करके 5 से डिवाइड करोगे तो 20 नंबर आ रहा है। इफ वन नंबर इज रिमूव्ड एवरेज बिकम्स 18, इनमें से कोई भी नंबर अगर रिमूव हो रहा है तो एवरेज क्या हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। फाइंड द रिमूव्ड नंबर, यानी कौन सा नंबर हटा होगा कि 18 आया होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सी एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20, यानी टोटल क्या हो जाएगा 5 इंटू 20। इस टाइप का एवरेज वाला, परसेंटेज इंक्रीज वाला आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो अच्छा होगा कि आप इसका प्रैक्टिस करके जाएं, और ये इजी होते हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना होता है। सो कैसे आप पता करोगे एवरेज क्या होता है? देखो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने अभी जस्ट लिखा है, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है, अपॉन, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है? तो आपके 5 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, तो 5 × 20 कर दिया, तो ये 100 हो गया। नाउ रिमेनिंग टोटल क्या हो जाएगा? 4 × 18, क्योंकि अगर एक नंबर हट जा रहा है तो हमारा जो टोटल एवरेज है वो 18 आ रहा है। तो जैसे 5 × 20 किया था तो 100 आ रहा था, 4 × 18 किया तो 72 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, रिमूव द नंबर, तो 100 - 72 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा 28। समझ आया कैसे सॉल्व किए? सबसे पहले फाइंड टोटल ऑफ 5 नंबर्स, 5 नंबर्स का टोटल कितना आएगा, ठीक। तो कैसे आया टोटल हमारा, एवरेज इनटू n कर दिया हमने, ठीक है। तो हमारा टोटल आ गया ये, यही तो किया यहाँ पे, देखो। लेट मी इरेज एंड लेट दिस वन। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको फाइंड करना है, फाइंड द टोटल ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? एवरेज होता है टोटल अपॉन नंबर, तो टोटल कैसे पता चलेगा? एवरेज इंटू n इज इक्वल्स टू टोटल होगा। तो एवरेज कितना है? 20 है, n कितना है? 5 है, तो टोटल कितना हो गया? 100। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंडली क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंडली हो जाएगा 4 × 18, क्योंकि यही बोला है 4 नंबर का टोटल और 18 एवरेज आ रहा है, तो टोटल इसका 72 हो गया। तो इसमें से ये घटा दो तो 28 आपका नंबर हो जाएगा, सिंपल। तो इसको भी सॉल्व करना, ठीक है। नाउ सिनोनिम ऑफ मिटिगेट, व्हाट डू यू मीन बाय मिटिगेट? मिटिगेट मीन्स इंक्रीज, रिड्यूस, इग्नोर, रिले। So we always like write the like this way. We need to mitigate the heavy metal pollution. We need to mitigate the air pollution. Mitigate means to reduce. ठीक है, कम करना होता है, ना कि बढ़ाना या डिले करना और एनीथिंग एल्स। सो ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सक्योर? सो ऑब्सक्योर का मीनिंग सबसे पहले आपको जानना होगा। एंटोनिम सिनोनिम अगर आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे तो वहां से भी आपको अच्छे से मिल जाएंगे। ऑब्सक्योर का मीनिंग होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या ये सब होता है, ठीक है। सो ऑब्सक्योर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लियर। ऑपोजिट एंटोनिम यानी ऑपोजिट होता है। एरर करेक्शन, ही डू नॉट नोज द आंसर। सोल्यूशन, ही क्या होता है? ही डू नॉट नोज द आंसर होगा क्या? वी ऑलवेज यूज विथ ही, लाइक क्या क्या हम यूज करते हैं? सी, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए करेक्शन के, तो उसको ध्यान से करना, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि क्या हम यूज करते हैं किसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही डू नॉट नो द आंसर के बजाय होगा डज। ही डज नॉट नो द आंसर, ही शी के साथ में ई एस जोड़ता है, तो ही डज नॉट नो द आंसर, ठीक है। नाउ fill in the blank. She is good dash mathematics in, at, on, for. So she is good at mathematics. इस टाइप के आपको सिंपल सिंपल fill in the blank टाइप के आ सकते हैं। नाउ नंबर सीरीज है 2, 6, 12, 20। सो 2 में कितना प्लस हुआ है? 4 हुआ है, फिर +6 हुआ है, फिर +8 हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा? 4, 2, 6, 8, 10 प्लस होना चाहिए, तो सीरीज होनी चाहिए 30, ठीक है। फिर 12 प्लस होगा, फिर होना चाहिए 42। तो इस टाइप से आपको ध्यान देना है कि कितना प्लस 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 इंक्रीज होता है, सब में हर बार में दो 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 इंक्रीज हो रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 30, क्योंकि 10 प्लस होगा। सिंपल था। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कोडिंग डिकोडिंग के। देखो, इफ कैट इज DBU देन डॉग विल बी व्हाट? सो देखो, सी का क्या हो गया है? D हो गया है, ए का क्या हो गया है? B हो गया है, टी का क्या हो गया है? U हो गया है। सो डी का क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। उसके बाद ओ का क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। जी का क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो अब समझ आया, +1 +1 करे जा रहा है, ठीक है। तो इजीली आपको EPH आंसर चूज करना है। नाउ ब्लड रिलेशन रिलेटेड,
A is B's sister. So A is sister of B. Now B is C's father. ठीक है, B जो है C का फादर है. हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? हमेशा डायगोनल रिलेशनशिप पूछता है, मैं बता रही हूँ. इफ ए इज सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज फादर ऑफ सी, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी? सो ए एंड सी इज हाउ रिलेटेड? ए इज सिस्टर ऑफ b is equals to father of c. Now obviously a will be the aunt of c. A will be the aunt of c because yeah, first relation here in the question is given that a is b's sister. ए बी की बहन है. नाउ जो बी है वो सी का फादर है, तो ए क्या हुई? सी की तो आंट हुई. ठीक है, मासी हुई, मतलब कहने का मतलब डायरेक्शन. अ मैन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट. तो यहाँ पे हमेशा ऐसा बना लिया करो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक. अब यहाँ पे बोल रहा है दैट अ मैन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट, यानी 10 मीटर वो ईस्ट गया. ठीक है, फिर उसके बाद वो साउथ गया, फिर उसके बाद 10 मीटर वेस्ट गया. सो वो किस तरफ है? मतलब वो साउथ जाएगा तो साउथ से उसका ईस्ट क्या होगा? ठीक है, सब सॉरी, ईस्ट पहले वो गया है, फिर ईस्ट के बाद उसका साउथ कहाँ होगा? तो ईस्ट जो है, ईस्ट का 10 वेस्ट का 10 ये कैंसिल करता है. ठीक है, देख यहाँ पे देख रहे हो, 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर वेस्ट, तो ये तो कैंसिल हो गया. फिर रिमेनिंग क्या बच गया? 5 मीटर साउथ. तो यही तो आंसर होगा, क्योंकि वो उसने इक्वली डिस्टेंस चला था, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 5 मीटर साउथ. यानी ये वही बात है, 5 कदम फॉरवर्ड जाओ, 5 कदम बैकवर्ड जाओ, तो आप तो उसी उसी पोजीशन पे रह जाओगे. सो दिस इज द like that type of question. Headquarter of Indian Council of Medical Research is located obviously at Delhi. Which typhoid is caused by dengue virus? Which disease is caused by dengue virus? Typhoid, malaria, dengue fever. ये तो आपको पता ही है, dengue fever. Now one more question. Which organization launched the One Health initiative to integrate human, animal, and environmental health? WHO, ICMR, फूड एंड सी, सभी के सहमति से ये लॉन्च हुआ. इसमें सिर्फ ICMR टिक नहीं करना है, बिकॉज इट इज बेसिकली अ सिनर्जिस्टिक स्टडी, यानी कि बहुत सारे, मैंने बोला ना, एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व है. सो उसका कौन देगा? WHO इन्वॉल्व है, अलग अलग फील्ड्स इन्वॉल्व है, थीम्स इन्वॉल्व है, तो सभी लोग को तो एग्रीमेंट देना पड़ेगा ना. तो ये डिसीजन अकेले ICMR का नहीं था, इंस्टेड सबका था, तो ऑल ऑफ दी अबव होगा. जोनोटिक डिजीज के कंट्रोल के लिए India's first mRNA COVID-19 based vaccine developed by whom? तो जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल ने लॉन्च किया था. ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन, फर्स्ट mRNA COVID-19 वैक्सीन. तो ये भी क्या है? ये एक करंट अफेयर्स है, तो आपको ध्यान में रखना है. नाउ नाउ ऑप्शन. The theme of World Health Day 2024 was हेल्थ फॉर ऑल, माई हेल्थ माई राइट, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, लिविंग हेल्दी. ठीक है, हेल्दी लिविंग. तो देखो, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये कब मनाया जाता है? इट इज ऑन 7 अप्रैल. 7 अप्रैल को मनाया जाता है. ठीक है, तो जो थीम है वो हर बार अलग अलग रहता है. तो अच्छा होगा कि आप हर बार का लिख ले. तो जो 2024 का जो थीम था, इट वाज माई हेल्थ माई राइट. ठीक है, 7 अप्रैल को बनाया गया था. सो बेसिकली इट हाईलाइटेड द यूनिवर्सल राइट टू क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ सैनिटेशन, क्लीन एयर, गुड न्यूट्रिशन. इन सब पे एम्फेसिस था. ठीक है, तो आपको इसका सबका निकालना है, हर साल का थीम निकालना है. तो एक क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको. ना कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बता देती हूँ. मिटिगेट का होता है रिड्यूस, एलिविएशन भी आता है हर बार, एलिविएट का होता है रिलीव. आपने क्वेश्चन पेपर या रिसर्च पेपर पढ़ा है, उसमें देखना होगा एलिविएशन ऑफ दिस. तो एलिविएट का मतलब होता है रिलीव, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर. ठीक है, तो कैंडिड का क्या होता है? ऑनेस्ट. रोबस्ट का क्या होता है? स्ट्रॉन्ग. ये तो आप जानते हैं. तो ये 5 आप याद कर लो, मैं हर बार आपको थोड़े थोड़े देते जाऊंगी. ऑब्सक्योर का एंटोनिम होगा क्लियर. स्कार्सिटी अबंडेंस होता है. ट्रांजिएंट परमानेंट आप सब जानते हैं. ट्रांजिएंट मतलब जो चेंज होते रहता है. एक्सपांड, एक्सपांड फिर ये
कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and don't forget to subscribe the channel as it will motivate me to provide more such videos.